हेलो हेलो ठीक है। स्टॉप द एको हेलो ओके फाइन डियर प्रेमीज अब क्या करना है? हेलो 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 अब रहने दो भाई। डियर प्रेमीज नहीं अरे फिर चला गया। वो कनेक्शन आगे आगे हाँ the highest level, if you could put it on a chair, actually it'll be better. रेज चेयर के ऊपर On a रखो chair. इसको। The highest level for a devotee are the feet of the Holy Master. सबसे ऊंचा जो स्थान होता है भक्त के लिए वो सदगुरुदेव महाराज के चरण कमल होते हैं and the highest mountain in the world is the Himalayas, from where you come. One side is Bhutan, the other side is Nepal, and one side is India. So all the three countries joined together, and the Everest is called Sagar Matha. And we have lot of tales about it, lot of spiritual mythology about it. And from the highest point, the message of knowledge is spreading all throughout the world, and the message has reached Calgary, and here we are in the ashram. सबसे ऊंचा स्थान भक्त के जीवन में सदगुरुदेव महाराज के चरण कमल होते हैं, और आप लोग हिमालय से आते हैं जहां पर एक तरफ भूटान है, एक तरफ नेपाल है, और एक तरफ your mobiles are interfering actually with the amplifier system. आप आगे हो जाओ थोड़ा ये वो नहीं वो Okay, okay, that's fine. पीछे वाले आप एक तरफ भूटान है, एक तरफ ये आप ऐसे ही मोबाइल बंद बोलो, कर दो इतनी ना जरूरत ही नहीं है नेपाल है, और एक तरफ इंडिया है, और एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, जिसके बारे में कई कथाएं हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित है, जहां पर पांडव शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे, जहां पर भगीरथ ने तपस्या की थी, और सगर के जो पुत्र थे उनका उद्धार करने के लिए, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तपस्या करके धरती पर वो गंगा को लाया। हमेशा हिमालय के अंदर उसका संदेश तपस्या है। मानव तपस्या करोगे तो स्वर्ग को धरती पर ला सकते हो। मानव तुम तपस्या करोगे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हो। ये संदेश हिमालय का संदेश है। और हिमालय जो सबसे ऊंचा पर्वत है संसार का, आज उसके शिखर से शांति का, ज्ञान का संदेश फैलते फैलते आज कैलगरी तक पहुंच गया है, और हम आश्रम के अंदर विद्यमान हैं, जहां आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि पूरा परिवार के दर्शन लोगों को नहीं होते हैं। कहीं पर हम जाते हैं तो श्रियांश नहीं जाते हैं, कहीं पर हम जाते हैं तो सुयश जी नहीं जाते हैं, शरदे जी नहीं होते हैं। आज यहाँ सारा का सारा दिव्य परिवार आपको दर्शन दे रहा है, तो ये बड़े बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। प्रेमी सज्जनों, हम सबको निष्ठा से ये जो ज्ञान है, ये बड़ी तपस्या से, बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। अगर ज्ञान का हम भजन सुमरण करेंगे तो अपने जीवन को सफल बना देंगे। आप यहाँ आए हैं कि होय हो सो राम रच राखा, कोका तर्क बढ़ावई शाखा। It was barbaric. It was all, there was a volcano and bomb. We are here now
to listen to satsang and to meditate, to take the benefit of this opportunity that God has given us. Human life is an opportunity. It is something that we can mold into a greater. For example, something has been made, it has been made. But in human life we can progress. That is why we believe that man can become Superman and Superman can become Supraman. You can become divine. From matter you can become a human being, but from a human being you can become a superhuman being. You can become divine. That is the potential. If you take a seed and sow a seed, the seed will grow into a tree. Just like we planted a life. If you planted an apple tree, the apple tree will blossom and give many, many apples. But in human life, we can grow into a divine being. If we meditate, we live a spiritual life, then definitely we can become divine. This is the potential of a human being. This is the capacity, this is the potential that you are carrying because you are the seed of God. And if the seed is sown, if the seed is planted, and the seed gets satsang, darshan and seva, just like we were putting the plant, we were putting the mud, we were putting the manure, and we were sprinkling water. So three things were essential. And the sunlight is also essential. So in the same way, when we plant the seed of spirituality, have darshan, satsang, meditation, then that blossoms into a spiritual tree, the tree of knowledge. And this tree of knowledge is called Kalpataru, Kalpavriksha. So, here we are inaugurating this small ashram. Something small turns into big. Something small turns into a bigger thing as we progress. So everybody has this opportunity to do seva, because this is serving your master. If you lead a clear life, a spiritual life, a holy life, you are serving yourself and you are also serving your master. Whenever the grandmother says to the grandson that do this, in that suggestion, the good of the boy is there. And the good of following the command of the grandmother is also there. We call it the best opportunity, the best thing, good end result is also included in that. So whenever we go to a master and follow his command, What happened? in his command, our benefit is already there. That is why many scriptures say that doing good, you won't get a Nobel Prize for that. Because doing good in itself is a noble cause. You won't get rewarded for that. Because doing good in itself is a reward. So spirituality, meditation is a reward in itself. And the plan of God, because there is positive and negative in the world. And when you develop spirituality, when you manifest spirituality, you follow the positive principles. तो प्रेमी सज्जनों, ये अच्छाई या बुराई संसार में होती है. कहा जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गए पह पर हरि वार विकार. ये सुंदर मौका हमें मिला है और जीवन के अंदर हम लोग भजन भक्ति करें. क्योंकि अगर कोई माँ अपने बेटे से कहती है बेटा ये काम कर, उसके आज्ञा में, माँ की आज्ञा में बच्चे का हित, बच्चे का शुभ, बच्चे का मंगल निहित है.
अगर माँ कहती बेटा तू पढ़, तो उसकी पढ़ाई में बच्चे का फ्यूचर नहीं था, छुपा हुआ है। वो माँ की आज्ञा तो मानेगा ही, पर अपना उसका फायदा, अपना लाभ भी उसमें छुपा हुआ है। ऐसे ही जब हम कहते हैं भजन करो, आपका लाभ भी उसी में है, क्योंकि वही खजाना है जो आपके साथ जाना है। संसार का खजाना नहीं यहां रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। आपने देखा होगा इससे पहले यहाँ रेड इंडियंस के रिजर्वेशंस थे, जो यहाँ रेड इंडियंस आए थे, रहते थे। आज जाइए तो दिखाते हैं रेड इंडियंस के रिजर्वेशंस हैं उनके, वो खड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर ये काम किया, हाथ मिलाया, जमीन दी। आज वो कहाँ है? चले गए। यही छूट गया, माया यही छूट गई। माया साथ जाने वाली नहीं है। जो सीट जाएगी, जो आपके साथ जाएगी, वह है भजन की कमाई। आपने कितना भजन किया है, ये कमाई आपके साथ जाएगी। एक सज्जन थे, कहने लगे मैं मानसरोवर होके आया। तो मैंने कहा जी मानसरोवर होके आए तो आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? कहने लगे मानसरोवर जब मैं गया तो मुझे इतना सुकून मिला कि आज भी जब मुझको बड़ी परेशानी होती है तो मैं आंख बंद करके मानसरोवर की चिंतन करता हूँ, मानसरोवर को सोचता हूँ। और मानसरोवर में जो शांति मुझे मिली, जो वहां जाकर के मेरे अंदर अविचारता आ गई, कोई मेरे अंदर विचार नहीं होता था, मैं बिल्कुल शांति से वहां बैठ करके मानसरोवर देखता रहा, तो वो मेरी पूंजी है। जब जब मेरा मन विचलित होता है, मैं आंख बंद करके मानसरोवर का दर्शन करता हूँ। आपने देखा होगा, आप अगर पशुपतिनाथ दर्शन करने गए होंगे, या आप अगर कहीं मंदिर में दर्शन करके गए होंगे, आपको बड़ा सुकून मिला होगा। तो आप जब विचलित होते हैं तो आंख बंद करके वहीं का ध्यान करते हैं। ये तो एक फिजिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही फिजिकल एग्जांपल है, क्योंकि ये फिजिकल एग्जांपल आपकी पूंजी बन जाती है। आपको जो बहुत से टूरिस्ट वाले लोग हैं, उनको दुनिया देखनी है तो क्या देखते हैं कि अगर उनको बहुत अच्छा लगा तो ताजमहल अच्छा लगा, अगर कोई बहुत पसंद करेगा तो आंख बंद करके ताजमहल का ध्यान। कोई पेरू जाता है, उसने माचू पिचू देखा, उसको विचलित हो जाता है तो आंख बंद करके माचू पिचू का ध्यान करता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। ये तो फिजिकल चीजें हैं। जो आध्यात्मिक ध्यान है वो तो सबसे बड़ा खजाना है, और वो खजाना आपकी पूंजी है, आपकी वेल्थ है। जब भी आपका मन विचलित करे, आप प्रभु का ध्यान करोगे तो प्रभु क्या है? सत्य चित्त आनंद। वो सत्य है, आपके साथ हमेशा रहेंगे, था और रहेगा। मनुष्य के साथ क्या चीज है हमेशा? मनुष्य के साथ देखा जाए तो हमेशा उसके साथ उसके प्राण हैं। जो श्वास हमारे चल रहे हैं, ये प्राणों की माला उसके साथ है, और वो चैतन्य है, कॉन्शियस है और आनंदमय है। तो ये उसका ट्रेजर है। So when a person went to Mansarovar, I asked him, what was the experience you had? He says, I was absolutely peaceful there. I was absolutely liberated there. And whenever I have trouble moments in my life, when I feel the pain and the pressure, I always think about Mansarovar. And I get very peaceful. I'm giving a very physical example. This is a physical example I'm giving. Many people have seen Machu Picchu. If they feel a little bit the pressure and the anxiety, then they think about Machu Picchu and they get peaceful. This is a physical thing I'm giving. Spirituality is this, that whenever you feel the fluctuations, whenever you feel the pain in the world, the suffering in the world, and you think about God. Because even Christ, when he was crucified on the cross, he was thinking about God. He was meditating on God. So whenever you meditate on the Sat Chit Ananda, Sat is truth. And what is truth? That the breathing in and the breathing out is always with you. If you are alive, then you will breathe. You cannot be alive without breath. You can only be alive with breath. The breathing in and the breathing out, the prana and the apan. Chitta is Chaitanya.
consciousness, the energy which makes us aware, like you are sitting in this room, you are aware that so many people are there, Maharaj is giving satsang. And Ananda is bliss. So whenever you feel suffering in the world, wavering of the mind, if you meditate, you will get peaceful. This is your wealth. Meditation is your wealth. This will go with you. The rest of the things, the physical things will dissipate. That is why it has been said that the wealth of the soul is the real wealth, which rust cannot corrupt, death cannot decay, that is immortal. So today we inaugurated this ashram. My congratulations to all the premis here. They are very few number, but they have done a great job. And this is, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा. गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, उसके परिसरी में जाओ, उसके परिधि में जाओ, तो there is a small room there, muddy. So the Guru told his disciple that construct this room. So the disciple made the room. Next day the Guru Maharaj said, no, this is a little bit awkward. You should make it that side, just knock it down. He knocked it down. He made it on the other side. Third day the Guru said, no, this is on the wrong space, wrong place. You should make it on the other side. The disciple knocked it down and made it on the other side. And this was happening, keep on going. Every day he was constructing, and the second day he was demolishing it. So finally everybody was saying, what is happening? What has happened to Guru Maharaj? He is just giving orders here and there and here and there. And the disciple is making the room and knocking it down. What is happening? So finally Guru Maharaj told the disciple that, aren't you worried that I'm telling you to make this room and then demolishing it and then making it here, making it there. So many places you have made. So the disciple said that, Guru Maharaj, my duty is to follow you. Whatever you say, I have to do that. That's my command. I'm not bothered about what the people are thinking. And you know, Guru Maharaj made him his disciple and then anointed him with the Guruship. He became the Sadguru again. So when we simply follow the command of the Guru, then we get success. That's the spiritual success. Do not put your mind there. If you put your mind, if the man was thinking, oh, the people are worried about Guru Maharaj has gone a little bit, haywire. What's happening? I'm making it here, I'm making it there, I'm knocking it down. What's happening? But he told his master, my job is to fulfill your commandment. Whatever you say, I'm doing it. I'm not bothered about the world. Such clarity was there. Such devotedness was there. He was not thinking about the world, he was thinking about the command of the Guru. The same example also is in the Buddhist scripture. There was one Lama. His Guru told him to make a house, demolish it. I think 100 times he demolished that house. And finally the Guru said, aren't you worried? He said, I'm not worried about the world, I'm worried about your command. You tell me 1,000 times, I'll knock down the house. Because I have to do seva, I have to follow your command. And the Guru was so happy. The Lama became such an important Rinpoche. Malarappa, yes, Malarappa. His name was Malarappa. Very, very, very important in Buddhism. So, such are the examples. So, you may be very small, very few in numbers, but if you do what the masters tell you, the success will be yours, and you will be the people to propagate knowledge in this whole area. So thank you very much. Blessings to all the premis. And I think through internet so many people are watching us.
sharing this beautiful moment. And if anybody wants to come here, this is a great opportunity to see the inner beauty and the outer beauty. Yeah. Because Lake Louis was very beautiful. Yes. And I think Harry also came here after the marriage. In the whole world, he chose this space. Okay, thank you. भाई जी बोलो तो बोलो आप मत बोलो ना माता जी बोलेंगे सब आपको सुनना है मत आपका खाओ इसकी पूजा है मैंने सुना लंदन में नहीं आएगा तो मैंने क्या बोला Right? How many people are watching? just 6 waiting 6 only 6 But this may be your Facebook, not the No, official. it's Canada. Manataram, Canada. प्रेमी सज्जनों, आदरणीय बैठीगण और यहाँ आई सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, सबसे पहले सारे कनाडा के प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत लंबा no Yes, yes. ये एक बहुत लंबा सफर है जिसके एक मुकाम पे आज हम लोग पहुंचे हैं। मान साहब लोगों की बड़ी इच्छा थी जब से वो 1991 में जब कनाडा आए तब से वो बार बार माता जी से बार बार कहते थे कि कनाडा में भी आश्रम हो और कनाडा में भी जैसे प्रचार और देशों में है तो वहाँ हो। लेकिन एक संयोग की बात होती है और विधि का विधान हमें यही बताता है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं होता। तो हमने भी देखा कि पिछले 5-6 सालों में हम टोरंटो भी गए, वैंकूवर भी गए, ऐसा कोई चर्च, ऐसा कोई फार्म हाउस हमने नहीं छोड़ा, मिसिसागा, ब्रैम्पटन में जा घूम घूम करके हमने कोशिश नहीं की। और कितनी बार ऐसी जगह भी हमने मतलब 3-4 जगह तो ऐसा ही हो गया था कि बस अब बात ही आगे चल रही है लेकिन किसी बात पे वो बात आगे नहीं बढ़ती थी। हमने तो टोरंटो में भी एक चर्च, बहुत सुंदर चर्च देखा था जो बना बनाया था, वहाँ पार्किंग थी, हर चीज थी, लेकिन गार्गी भाई जी को आश्रम पसंद नहीं आया। फिर हम लोगों ने और जगह भी चर्च देखे, कोई चर्च नहीं बेचना चाह रहा था अपने प्रॉपर्टी को। तो 6 साल से तो हम ही स्ट्रगल करते रहे। फिर मैंने मान साहब को कह दिया कि जी अब मैं सिर्फ चर्च और प्रॉपर्टी देखने के लिए कनाडा नहीं आऊंगा, आप लोग देखिए। और फिर सहयोग की ऐसी बात हुई कि अगर कोई तो ले जाओ स्लाइड में ले जाओ स्लाइड तो अगर इस आश्रम के भी इतिहास को देखें, क्योंकि बहुत से प्रेमी लोग हैं जो नहीं जानते, तो ये समय है बताने का कि इसके बगल में जो आप घर देख रहे हैं, पहले इस घर की बात चल रही थी और वो व्यक्ति नेगोशिएट करने के लिए तैयार ही नहीं था। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किए उसको ये समझाने के लिए कि भाई ये आश्रम की जमीन रहेगी और यहाँ अच्छा ही कार्य होगा और आप थोड़ा अपने प्राइस को नीचे कीजिए तो हम बात करेंगे। और फिर एक मुकाम पे पैसे आ गए कि महाराज जी भी तैयार थे कि भाई जितना वो मांग रहा है उसको हम दे देंगे। लेकिन फिर हमारे मन में एक बात आई कि भाई अगर प्रेमी लोग आश्रम से खुश नहीं है तो भाई कोई आश्रम एक बोझ की तरह लोगों के ऊपर नहीं आना चाहिए। फिर मैंने महाराज जी को निवेदन किया कि जी अब 6 साल से तो हम ढूंढ ही रहे, 7वां साल चले जाएगा, कौन सी बड़ी बात होगी, कोई चीज बदलेगी थोड़ी। और देखिए जो मैंने कहा कि भाग्य से पहले और समय से पहले तो भाग्य में जो है वही मिलता है। तो जिस दिन हमने फोन करके भाई जी लोगों को कहा कि जी आश्रम नहीं होगा, तो भाई जी लोग इसी जगह से गुजर रहे थे और उसी दिन इस प्रॉपर्टी का फॉर सेल का साइन इस घर के बाहर लगा। और भाई जी लोगों ने तुरंत उस व्यक्ति से बात की। उसने तो वेबसाइट के ऊपर भी, रियल्टर वेबसाइट के ऊपर भी अपने घर को चढ़ाया नहीं था, बस डिसीजन लिया था कि मैं घर बेचूंगा। और 2 या 3 दिन की नेगोशिएशन में, बातचीत करने में ये आश्रम का जो नेगोशिएशन था कंप्लीट हो गया और समय के साथ हमें पोजीशन मिला। पिछले साल हम लोग कैलगरी में इस घर को ही, आश्रम को ही फाइनलाइज करने के लिए आए थे। तो यही कहना है कि अगर हम इन चीजों को देखें, इन कड़ियों को देखें, तो स्वाभाविक है कि एक परम सत्ता है जो हर चीज को देख रही है। आदमी अपनी सोच और अपने योग्यता के अनुसार कर्म ही कर सकता है।
लेकिन एक परम सत्ता है जो हर चीज को देखती है और कर्म के अनुसार, अपने सोच के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार भगवान हमें अपने कर्मों का फल देता है। मेरा यही कहना है कि जीवन में हमें गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है। जैसे गुरु महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर बात कही कि जब हम आज्ञा में रहते हैं तो आज्ञा में रहने से ये नहीं है कि गुरु महाराज जी का फायदा हो रहा है। अगर देखिए, अगर हम आज्ञा में रहते हैं, हम संस्कारों का जीवन जीते हैं, तो उसका जो परम फायदा है, जो फर्स्ट बेनिफिट है, वो तो हमें ही मिलता है। आज देखिए, हम देश विदेश घूमते हैं, देश विदेशों में माता पिताओं का चिंता क्या है। हम किसी भी समाज में चले जाए, हम नेपाली समाज में चले जाए, गुजराती समाज में चले जाए, हिंदू समाज में चले जाए, कहीं भी चले जाए, सब लोग ये चिंतित रहते हैं कि जी हम तो यहाँ आ गए, हम तो अपने देश से दूर हो गए। लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी हमारे जो देश की संस्कृति है, संस्कार है, उसको अपनाएं। और सबका यही डर रहता है कि भाई अपने देश से इतने दूर रह करके क्या हमारे बच्चे जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जिन पद्धतियों को हम मानते हैं, क्या कल उनको मानेंगे? और चीजें लुप्त कैसे होती है? अगर हम मानव के इतिहास को देखें, सिविलाइजेशंस के इतिहास को देखें, कितनी सभ्यताएं संसार में आई, चली गई, लुप्त हो गई, भाषाएं आई, लुप्त हो गई, कल्चर्स आए, लुप्त हो गए। आज खंडरों में हम उनको देख रहे हैं कि भाई ये खंडर बना करके चले गए, कोई पिरामिड बना करके चला गया, कोई महल बना करके चला गया। लेकिन आज उनको याद रखने वाला या उनकी जो परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोग अपने रास्ते से या अपने संस्कारों से परे होते गए, और जैसे परे होता गया पद्धति बदलती गई, सोच बदलती गई, और आदमी अपने आप से बहुत दूर हो गया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब हम गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हैं, तो जब आपके बच्चे एक संस्कारों को आपको ही अपनाता हुआ देखेंगे, तो कल आपके बच्चे भी उसी संस्कार को अपनाएंगे। कल जिस भाषा को आपके बच्चे बोलता हुआ देखेंगे, कल उसी भाषा को अपनाएंगे। मुझे तो याद है कि जब स्टार्टिंग में जब भूटान से लोगों को यहाँ धीरे धीरे लाया जा रहा था, तो बहुत से प्रेमी लोगों को हम जगह जगह मिलते थे। उस समय बाईजी लोगों का हमारा भी कोई ठिकाना नहीं था ऑरलैंडो का आश्रम नहीं था। हम जगह जगह कहीं किसी के घर में रह करके, किसी प्रेमी के घर में रह करके प्रोग्राम किया करते थे। तो जब सबसे जो पहला बैच भूटनीज लोगों का आया, उसमें आपके बफलो के तारा जी थे, उसमें विष्णु जी थी जो अब आश्रम में ही हैं। तो विष्णु जी तो 22 घंटे गाड़ी अपने नेबर को कह करके कि मैं तुझे इतना भी पैसा दे दूंगी, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी आ रहे हैं, क्षत्रिय जी आ रहे हैं और सत्संग हो रहा है, मुझे सत्संग में जाना है क्योंकि मैं सत्संग से यहाँ वंचित हूँ। तो वो बोल भी नहीं सकती थी, उनको इंग्लिश तो आती नहीं थी, हिंदी भी बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो आई और महेश भाई हमारे हैं न्यू जर्सी के, उनके घर में प्रोग्राम हुआ और वो आकर के केवल पीछे बैठ गई। उन्होंने केवल एक भजन गाया और फिर वो जो प्रोग्राम खत्म हुआ तो 22 घंटे वापस गाड़ी में बैठ करके वो वापस चली गई। तो मतलब 3-4 घंटे के लिए केवल हमें मिलने के लिए, एक सानिध्य प्राप्त करने के लिए वो आई। आज आप परिणाम देखो, हमारी विष्णु जी धड़ाधड़ इंग्लिश भी बोलती हैं अमेरिकन सिटीजन बन गए। मतलब तो आप देखो कि आप लोग भी कितने संघर्षों से आए, सबकी चिंता क्या थी। और ये होता था, अब जो यंग बच्चे आए वो तो इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश बोलने लग गए, है ना, आप लोगों ने देखा। अब दादा दादी है, वो चाहे जितनी क्लास में चले जाए वो कहाँ इंग्लिश सीखेंगे। तो यहाँ परिवारों में क्या ना लगा कि दादा अपने पोते से बात नहीं कर सके क्योंकि पोता इंग्लिश में बोले और दादी को आए नेपाली। तो कितनी चीजों से हम वंचित रह गए। लेकिन जब एक आश्रम और एक गुरु दरबार हमें मिला, तो गुरु दरबार में हमें बचा करके रखा। आज हम कहीं भी जाते हैं, चाहे हम कोलंबस चले जाए, एरिज़ोना चले जाए, जो भी लोग गुरु दरबार से जुड़े रहे, आज अपनी संस्कृति पे, अपनी पद्धति पे, अपनी भाषाओं पे, अपने कल्चर पे अड़े हुए हैं। और कितने लोग हैं जो भटक गए अपने मार्ग से।